So students, we are left with 4 days to examination, and I know that there are certain anxieties and certain stress that you would be facing, and that's very normal. So the purpose of this video is to make you aware about certain essentials that you have to carry and certain essential things that you have to keep in mind before going for prelims. My name is Ankit, and today I'm going to have a very short discussion on what you should be opting for, what strategy you should be having for examination, and what are the things that you have to be prepared with before entering the examination hall, right? Before starting all this, one thing will make it very clear that whatever stress, whatever anxiety you are having, believe me, we all are with you, and you have done a tremendous amount of hard work, and we do believe on you, and we think that if you perform whatever 80-90% of yours that you have done, you will be able to ace this. So we are with you. I along with all the Smart Work Labs, do wish you all the very best for examination. Now let's start with essentials. See, there's one thing that we have to keep in mind, that in the previous attempt, the reporting time for prelims was 9:20. That is, the paper used to start at 9:30, but we have to be there by 9:20. But this time around, what we have seen is that in admit card is clearly mentioned that the door will be closed by 9 o'clock. So this is something which is very, because all those people who are given attempt previously, they have this mindset that they have to reach by 9:20. So this is a very important thing that you have to do, because they are not going to open the gate after 9 o'clock, and we have seen that many of our friends have missed their examination. So this is very necessary. Be there by 8:45 itself, right? Do not take this casually. Be there by 8:45. ऐसे भी लास्ट के 15 मिनट में आप कुछ ऐसा पढ़ नहीं लोगे जो आएगा, जितना आपने साल भर पढ़ा है, काफी पढ़ा है आपने, ठीक है. नेक्स्ट इज द एडमिट कार्ड. प्लीज कैरी 2 एडमिट कार्ड्स विथ यू, एंड if you have a certain issues in your photographs in the date that is mentioned, please carry additional photographs, right? So I would suggest you to carry 2 photographs as well. Whether you are having a good photo in the admit card or not, please do carry 2 photographs. Apart from that, also carry the document that you have mentioned in your admit card, that is your maybe your Aadhaar or maybe your whatever driving license or voter ID card that you have mentioned. So I would suggest you people to have keep it to you must be having it right now with you and be prepared with it. Then the other thing is that you need to carry a transparent this pencil box if you want to carry, because what happens is that they would not let you carry a box, let's say a plastic box or something like that, to examination hall. They will make it you to keep it outside. तो majorly ये होता है कि आप या तो अपने हाथ में पेन ले जाओ, या तो फिर आप एक transparent pouch रखो. In the pouch is far much better, because in pouch you can keep your admit card, you can keep your Aadhaar card, and you can keep your rubber, your chocolate, whatever you want, ठीक है. So that is a much better prospect. Apart from that, carry a water bottle, because see, temperature around Delhi is very high. Right now we are 43 degrees. So I would suggest you people to have a water bottle with you, right? तो वाटर बॉटल रखना, वो भी ट्रांसपेरेंट रखना, क्योंकि वहां पे क्यों सुबह सुबह आपको जाके किसी से बहस करनी है. पुलिस वाले ऐसे भी सुनते नहीं है. तो मैक्सिमम टाइम्स में आप क्या करिएगा, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल रखिएगा, ट्रांसपेरेंट एडमिट कार्ड रखिएगा, ठीक है. ब्लैक पेन, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. ब्लैक पेन से ओएमआर भरेंगे आप, इतनी तो शायद आपने सीख लिया होगा. तो आपकी ओएमआर ब्लैक पेन से भरेंगे. ब्लैक डॉट पेन आपके पास होना चाहिए, ठीक है. याद रखिएगा, ब्लू पेन से टिक करेंगे दिक्कत होती है, तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, there are 2-3 things that I would suggest is that first is do not discuss your paper 1 in between. आप GS1 और GS2 के ब्रेक के बीच में पेपर 1 बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, चाहे आपके साथ कोई भी गया हो, चाहे आपके साथ आपके दोस्त गए हो, चाहे आपके साथ आपका फेलो एस्पिरेंट सेम सेंटर में क्यों ना हो. दिस क्रिएट्स एक्स्ट्रा सेंस ऑफ बर्डन ऑन यू, बिकॉज देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट यू आर गोइंग टू मार्क इनकरेक्ट और समथिंग लाइक दैट, एंड यू विल बी हैविंग दिस आइडिया कि यार ये सही करना चाहिए था, 2.5 नंबर चले गए, 3 नंबर चले गए. इस आइडिया से बिल्कुल बचना है आपको. तो 1% भी आप पेपर डिस्कस नहीं करेंगे, बीच में पेपर बिल्कुल डिस्कस नहीं करना है आपको. ये मेरा पर्सनल वो है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर एबल टू स्लीप इन बिटवीन, प्लीज स्लीप, ठीक है. इफ यू आर एबल टू स्लीप इन बिटवीन दीज 2 पेपर्स, आप 15-20 मिनट का एक छोटा सा नैप ले सकते हैं. उसके बाद वॉट एवर सीसैट में आपने अपने फॉर्मूला बना रखे हैं, अपने शॉर्ट ट्रिक्स बना रखे हैं, उनको एक बार गो थ्रू करिएगा और सीसैट दीजिएगा, ठीक है. ज्यादा कुछ पेपर के बारे में सोचना नहीं है. यू डोंट हैव टू थिंक टू मच अबाउट द सीसैट पेपर. राइट फर्स्ट, गिव द GS1, गिव इट विद फुल अटेंशन, रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रॉपरली. डू नॉट लीव दिस नॉट नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा. जो भी स्ट्रैटेजी थी, स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी है. अगेन आई हैव मेंशन दिस मल्टीपल टाइम्स इन द क्लासरूम एज वेल. आपको स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी है. वॉट एवर स्ट्रैटेजी यू हैव ऑप्टेड फॉर, इट्स ऑप्टिमम. यू आर गोइंग टू एस विद इट, दैट्स इट. सीसैट में भी सेम. अगर कॉम्प्रेंशन पहले कर रहे हैं, मैथ्स पहले कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या पहले करना है, लेकिन आप जो भी चीज है पहले जो कर रहे हैं वो आप करते रहेंगे, बिल्कुल भी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करेंगे. जो चीज आपको यहां तक ले आई है उस चीज को आगे लेके चलेंगे तो सक्सेस आपको ज्यादा बेटर तरीके से मिल सकती है, ठीक है. और एक चीज है,
दोनों पेपर्स के बीच में कभी कभी हमें बहुत भूख लगती है, तो फ्रूट्स कैरी करना आप, जूस कैरी करना आप, लेकिन बहुत ज़्यादा खाना मत खाना। ऐसा ना हो कि सीसैट पे आपको भूख लग रही है, ठीक है। मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स पे ये बात सुनी है, अपने दोस्तों में भी बात सुनी है कि उनको बीच में भूख लगने लगती है तो वो इतना खा लेते हैं कि सीसैट पेपर में उनको नींद आती है, ठीक है। तो दिस इज, मैं जानता हूँ मैं जनरल स्टफ बता रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ ज़्यादा खाना नहीं खाइएगा फ्रूट्स वगैरह पे। 2 घंटे और भूखे रह लेंगे, कुछ होगा नहीं आपको, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि सीसैट के पेपर के पहले जब आप एंटर करते हो हॉल के अंदर, तो आप फटाफट एक मतलब 5 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा, तो आप पेपर में 1-2 चीज देख लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन जो ऐसे सॉल्व होते हैं उनको कर लीजिएगा, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं। और वन मोर थिंग दैट सीसैट इज हैविंग, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर हैविंग सम प्रॉब्लम इन सीसैट, बट आई वुड सजेस्ट यू पीपल इज दैट कि पेपर वैसा नहीं है। अगर आप सीसैट के क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, अगर इफ यू आर एबल टू रीड ऑल द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, यू विल बी एबल टू फाइंड सम इजी क्वेश्चंस एज वेल। द क्वेश्चन लुक्स वेरी बिग, वेरी हार्ड, बट you will find it easier. So I would suggest you people to read each and every question. By reading each and every question, you will be very comfortable. You will get certain reasoning questions, certain easy questions as well. तो उस पर टारगेट करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद लास्ट में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये लास्ट 4 days में what is the most essential things that you must be doing. For example, you don't have a plan for that, and if you have a plan, then I don't need that. I don't think that you will be listening to me as well. So all those people who don't have a plan, polity economy, this is certainly going to give you at least 26 to 30 questions. So I would suggest that polity economy is your essentials. Apart from that, I would suggest you to do mapping. Mapping में आपको 7 से 10 सवाल मिलेंगे, बहुत आराम से मिलेंगे, ठीक है, बहुत आराम से आपको मिलेंगे। तो ये 3 चीज अगर आप अपने जो भी नोट्स आपने बनाए हैं, जो भी आपके फर्रे हैं, वॉट एवर यू हैव, प्लीज रीड इट। पॉलिटी इकोनॉमी एंड मैपिंग, दीज 3 थिंग्स इफ यू हैवंट डन इन लास्ट 7 days, ये 3 चीज आपकी एसेंशियल्स हैं, इनको कंप्लीट करिए और आराम से कर देनी चाहिए। वॉट एवर करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आप कर रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल द मंथ्स विच आर इंपॉर्टेंट, आई वुड सजेस्ट यू पीपल टू गो फ्रॉम दिसंबर टिल अप्रैल रिवाइज कर दीजिए। पीछे का जो छूट गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पॉलिटी इकोनॉमी 30 क्वेश्चन, 7 to 10 क्वेश्चन मैपिंग, एंड जो लास्ट के 4 मंथ के करंट अफेयर्स हैं, दिक्कत तो मैपिंग से ही आएंगे, बट इसके अलावा इन्वायरमेंट भी फंसेगा आपका। तो ये इन सब चीजों को अगर आप करते हो अच्छे से, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हो। तो ये चीज है, ये एसेंशियल्स हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा यार, मतलब मैंने कुछ चीजें ऐसे लिख के रखी हुई थी, और इन 4 दिनों में अभी सीसैट में बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा आप। कॉम्प्रिहेंशन लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं 1-1.5 घंटे, बाकी तो जीएस आप पैक करिए फटाफट। और जो भी सीसैट में आपके नोट्स वगैरह होंगे वो कैरी करना, बीच में आप एक बार देख लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अब कुछ जनरल ज्ञान मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। एक चीज़ ये यार, पेपर से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। देयर शुडंट बी एनी प्री कंसीव नोशन अबाउट द पेपर। पेपर जैसा भी आएगा ऑन द स्पॉट आपको पेपर डील करना है। पेपर काफी टफ हो सकता है, पेपर काफी इजी हो सकता है, कुछ भी होगा। आपको पेपर के बारे में कोई प्री कंसीव नोशन लेके पेपर में नहीं जाना, ठीक है। कैसा आएगा, पेयर से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे, कोई मतलब नहीं है। पेपर देना है, आपने डिसाइड कर लिया, आप जा रहे हो। अब पेपर कैसा भी आएगा, कई बार मैंने ये बात बोल रखी है आप लोगों को कि कट ऑफ जो है वो कहीं भी जा सकती है। 75 पिछली बार थी, 65 इस बार हो सकती है। तो पेपर कितना भी टफ आएगा, इफ यू आर नॉट एबल टू सिंक इन, सिंपल पेन रखिए नीचे, पेपर पढ़ना बंद कीजिए, पानी का बॉटल खोलिए, पानी पीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, वापस से पढ़ना स्टार्ट करिए। सिंपल है, आपको अडाप्ट करना है, पेपर कैसा भी आए, ठीक है। वही पेपर करके 12 से 13 हजार लोग प्रीलिम्स पास करने वाले हैं, आप भी कर सकते हो। पैनिक बिल्कुल नहीं करना, पेपर कैसा भी आएगा, बार बार कह रहा हूं, कोई प्री कंसीव नोशन नहीं। हो सकता है 100 के 100 क्वेश्चन पेयर आ जाए, हो सकता है पेपर वापस से 2021 मॉडल पे चला जाए, कुछ भी हो सकता है। यू हैव टू बी रेडी फॉर ऑल ऑफ दिस। दिस इज सर्टेनली अ पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। जो भी होगा आप आराम से डील कर सकते हो, ठीक है। मुझे इतना पता है, कोई ओवर थिंकिंग नहीं करना है, कोई प्रेशर नहीं लेना है। सबसे बड़ी बात, मेजॉरिटी ऑफ लोग इस चीज को लेकर परेशान होते हैं कि यार साल भर मेहनत की है, वी हैव डन अ लॉट, सारी बुक्स पढ़ी है, वी हैव सैक्रिफाइस सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एज वेल, सर्टेन अमाउंट टाइम एज वेल, वी हैव सैक्रिफाइस, बहुत सारे फोन कॉल्स नहीं उठाए हैं, बहुत सारे फेवरेट मैचेस नहीं देखे हैं, इंडिया का मैच नहीं देखा, वर्ल्ड कप नहीं देखा, T20 नहीं देख रहे हैं, सारी चीजें, ठीक है। बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं आपने, बहुत अप्रिशिएट करते हैं हम लोग यहाँ पे आप लोग की सैक्रिफाइसेस को। अब सिंपल एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो भी चीजें हैं, ये रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा अगर आप प्रॉपर्ली एफर्ट करते हो, ठीक है। सैक्रिफाइसेस हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट लेके आते हैं, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी इस बात को लेकर, कोई ओवर थिंकिंग नहीं। प्रीवियस अटेम्प्ट में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कोई बात से कोई मतलब नहीं है आपको। नया एग्जाम है, नया साल है, आराम से जाके दो। कोई भी चीज ऐसी नहीं सोचनी है कि यार पिछली बार मैंने क्या गड़बड़ किया, मैं ये नहीं कर सकता था, मैंने ये क्यों किया। ये सारी चीजें आपको नेगेटिव में लेके जाएंगे, ठीक है। थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं रखना है, सिंपल सुबह उठना है, अच्छे से सोना है, एक दिन पहले सुबह उठना है, वॉट एवर द अमाउंट ऑफ टाइम यू आर एबल टू गिव टू योर रिविजन, ठीक है। उस 1 घंटे से कितने सवाल आए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने फर्रे बनाए, मुझे पता है, आप यू हैव नोट्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल स्पीसीज एंड मैथ्स एवरीथिंग। आपने पन्ने पलटे पेपर देने जाना, ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। पिछले अटेम्प्ट में क्या हुआ था, आप इंटरव्यू फेल हुए थे, मेंस फेल हुए थे, प्रीलिम्स नहीं हुआ, सीसैट नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं है। नया साल है, नया एग्जाम है, टेंशन नहीं लेना है आपको इन सब चीजों का बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद मैं सिंपल ये कहूंगा कि यार 15th की रात को बहुत लोगों को नींद नहीं आती है, बहुत नॉर्मल है, ये चीज सबके साथ हुई है, कोई भी अब नॉर्मल चीज नहीं है जो भी मैं आपसे बोल रहा हूं, बहुत नॉर्मल है। आपको फिर से नींद नहीं आएगी, तो मैं कहूंगा 14th की रात को आपको नींद आएगी, ठीक है।
ठीक है। तो 14 की रात को आप ये काम कर सकते हो कि 2 घंटे एक्स्ट्रा सो सकते हो, ताकि 15 को अगर मान लीजिए आपने कम भी सोए, 3-4 घंटे सोए, तो भी थोड़ा सा बैलेंस रहे आपका, ठीक है। तो 14 की रात को आप अच्छा सो दीजिए, और मतलब ऑल दोज पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस, आई वुड सजेस्ट यू टू ऑन 14th नाइट यू स्लीप 2 hours एक्स्ट्रा, सो दैट यू आर नॉट फीलिंग दैट मच ऑफ प्रेशर, नॉट दैट मच ऑफ हेडेक ऑन 15th मॉर्निंग एज वेल। चीजें सिंपल रखेंगी, ठीक है। ऑल दोज पीपल हु हैव दिस फीलिंग ऑफ डिहाइड्रेशन, वो अपने साथ ORS वगैरह रखिएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जितने आप में से मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु आर गिविंग प्रीलिम्स दिस टाइम अराउंड, मेजॉरिटी ऑफ यू आर माय फ्रेंड्स, राइट। आई लिटरली, आप स्टूडेंट्स भी हो, फ्रेंड्स भी हो, मुझे पता है आप कैसे पढ़ते हो, और यार सिंपल सी बात है, आप अपना 80-85% दोगे ना, मैं तो 100% की बात भी नहीं कर रहा हूँ। इफ यू आर एबल टू डू वट एवर यू हैव डन 80-85%, आई एम श्योर दैट यू विल बी पासिंग प्रीलिम्स बाय 15+ मार्क्स, राइट। बहुत मेहनत किए हो आप लोग। अब सिंपल सी बात है, लास्ट 4 days है, एकदम ये 4 दिन ऐसे पढ़ लो जैसे आपने कभी नहीं पढ़ा था, ठीक है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बस ऐसा 4 दिन पढ़ लो, और जो मैंने बेसिक्स अभी डिस्कस किया था वीडियो के अंदर कि हाँ ये चीज़ आपको करनी है, उतना कर लो, आप आराम से एस कर जाओगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। So I would not be taking much times of yours, and thank you for listening to me. And we here from Smart Work Labs, we all wish you all the very best for the examination. I know that you can do it, right? And we have a belief on you. We do believe that all of you have done a good amount of hard work, and we are proud of you. So चलिए, all the very best. एग्जाम करिएगा, एग्जाम के बाद बताइएगा एग्जाम कैसा हुआ, ठीक है। और ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं, अच्छा करके आओगे आप, ठीक है। बस भगवान का नाम लीजिए, पेपर दीजिए, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। चलिए, थैंक यू।